So we'll continue from our last day lecture, and we'll just recapitulate what we have studied. So we had studied about Gurutvakarshana, gravitation, and Guru means heavy, and Akarshan means attraction, and Gurutva means the property of the body which through which attraction occurs between two bodies. That is Gurutvakarshana, that is the force of gravitation. Okay. And we have not discussed the formula, but we just kind of understood that how does the gravitation occurs and how it causes the change in motion of the uh, objects in the universe. And one small example we saw is of the solar system, in which the sun and earth, both of them, they are being attracted towards each other, and due to that attractive force there is a circular motion, not exactly circular motion, but for our uh, studies pertaining to class 9 syllabus, we take it as circular motion. Okay. So the force which is perpendicular to the path of the motion of an object, that changes the direction of the motion. And we had discussed this, that there is centripetal force which force towards the center, and the direction of motion also we had studied. Okay, so this was the direction of the motion, and the direction is changing, that is the velocity is changing, therefore acceleration is non-zero, and therefore there is a force which causes the acceleration. That force is known as centripetal force, and that force is directed towards the center of the ball. Okay. So this was what we had discussed, and I had asked all of you to do activity 10.1 and record it and send a video of it. Uh, However, not many of you sent. So next class तक आप लोग भेज दीजिएगा. Yes, sir. So we'll again we'll start from activity 10.1. So take a piece of thread, tie a small stone at one end, hold the other end of the thread and whirl it around. Note the motion of the stone. Release the thread. Again, note the direction of the motion of the stone. So, in the first motion, what is happening is when the string is intact, the this particular stone is revolving in a circle, and when this string is cut, okay, then what happens is, or when you release it, when you release it, then this the same uh, the same particular ball that will go at a perpendicular tangent, from that particular point. तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट जाएगा और इन दोनों का एंगल 90 डिग्री रहेगा. So this angle is 90 degree. That's what the observation is. Fine. So note the motion of the stone. So this is stone motion is circular. Okay. And again note, so then there is a tangent. So we go.
So before the thread is released, the stone moves in circular path with certain speed and changes direction at every point. The change in direction involves change in velocity or acceleration. The force that causes the acceleration and keeps the body moving along the circular path is acting towards the center. This force is called centripetal, meaning center seeking force. ये सब हम लोग कर चुके हैं. Tangent to this. The motion of the moon around the earth is due to the centripetal force. ठीक है, ये क्लियर है, ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे पिछले बार. The Yes, sir. centripetal force is provided by the force of attraction of the earth. और ये जो फोर्स है सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है? प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो मेरा ये अर्थ है और ये छोटू सा मून है. ठीक है, और ये मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है. कैसे घूम रहा है? तो जैसे कि हम एक स्ट्रिंग लेकर के घुमाते थे. ठीक है, एक स्ट्रिंग लेकर के हम इस ऑब्जेक्ट को घुमाते थे ऐसा. तो वैसे यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है. तो ये स्ट्रिंग क्या करता था? ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहा है, एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट जो है इधर घूम रहा है. ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में ऐसा ही होता है कि जब आप घुमाते हो तो इसको, इस रस्सी को खींचना पड़ता है अपने तरफ. ठीक है, ये रस्सी को आप खींचते हो अपने तरफ. ठीक है, तो जब आप ये रस्सी को खींच रहे हैं इसका मतलब कि फोर्स जो है इधर लग रहा है और इस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वैसे ही तो यहाँ पर भी जो है अर्थ मून पर फोर्स लगा रहा है. इधर ये है अट्रैक्टिव फोर्स और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये है ड्यू टू ग्रेविटेशन. ठीक है, और इसके कारण मून जो है रोटेट कर रहा है अर्थ के चारों. क्लियर है? If there was no such force, the moon would pursue a uniform straight line. और अगर ये फोर्स नहीं रहता तो मून जो है इसी डायरेक्शन में जाता रहता है. ठीक है, यही डायरेक्शन में यही बोल रहा है. क्लियर है? ये पैराग्राफ समझ में आया? Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. Yes, sir. चलिए थोड़ा सा आगे. It is seen that a falling apple is attracted towards the earth, correct? Yes, Okay. sir. Yes, sir. Does the apple also attract the earth? If so, we do not see the earth moving towards an apple. Why? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है. जैसे कि अर्थ है एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि देखो ये हो गया मेरा अर्थ. और ये छोटू सा एप्पल है. ज़्यादा दूर ले लिया, छोटू से मेरा. ठीक है, तो अगर इस पे फोर्स लग रहा है ना, तो अर्थ पे भी फोर्स लगना चाहिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण. Yes, sir. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण अगर ये फोर्स लगना चाहिए तो जब ये सेब मेरा नीचे गिर रहा है अर्थ को भी ऊपर जाना चाहिए. यस और नो? Yes, sir. है ना, क्योंकि अगर फोर्स लग रहा है तो क्यों नहीं जाता है ये हम लोग समझेंगे. ठीक है, तो ये तो डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? यस. If so, we do not see the earth moving towards an apple.
yes we do not see, no we don't see. ठीक है, why, तो ये हम लोग समझेंगे. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड क्यों ऐसा नहीं है. Okay. So now, according to the third law of motion, the apple does attract the earth. ठीक है, clear है? According to the third law of motion, the apple does attract the earth. Apple attract कर रहा है earth को. Yes, sir. Clear है ना? But according to the second law of motion, for a given force, acceleration is inversely proportional to the mass of an object. Okay? तो दोनों एक दूसरे को फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है. ये मेरा अर्थ हो गया है ना, एप्पल हो गया, ये छोटू सा एप्पल. तो इधर भी एफ लग रहा है और इसके ऊपर भी एफ लग रहा है. समझ में आ रहा है? ये अर्थ है Yes, sir. और ये एप्पल है, इसके ऊपर एफ फोर्स लग रहा है और ये भी फोर्स लगा रहा है. थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कारण क्या हो रहा है, फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो अभी देखो इसका जो होगा एफ है ना, ये अर्थ का जो सॉरी एप्पल का जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल क्या रहेगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ एप्पल. और अर्थ का जो एक्सेलरेशन रहेगा वो लगेगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ. यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मेरा एप्पल का मास जो है बहुत छोटू सा है, इसीलिए एक्सेलरेशन जो है बहुत ज्यादा है. और मेरा अर्थ का मास बहुत है, इसीलिए एक्सेलरेशन जो है छोटू है. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? यही. So the mass of an apple is negligibly small compared to that of the earth. So we do not see the earth moving towards the apple. Extend the same argument for why the earth does not move towards the moon. मून अर्थ के तरफ हो रहा है अट्रैक्ट, लेकिन अर्थ नहीं हो रहा है. ठीक है, क्योंकि अर्थ का मास मून के मास से बहुत ज्यादा है. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है सबको? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. So in our solar system, all the planets go around the sun. Okay. By arguing the same way, we can see that there exists a force between the sun and the planets. Sun और planets में force लग रहा है. From the above facts, Newton concluded that not only does the Earth attract an apple on the moon, but all objects in the universe attract each other. This force of attraction between objects is called the gravitation force. So gravitation force क्या है? Gravitation force that all objects in this universe they attract each other. This force of attraction is called as gravitation force. समझ में आ गया? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, एकदम sir. क्लियर, एकदम क्लियर. Yes, sir. So what is gravitation force? हम लोग पढ़ रहे हैं. तो gravitation force क्या होता है कि all objects in universe attract each other. ये हो गया gravitation. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो आप लोग, अपने बुक में अंडरलाइन कर लो अच्छे से. ठीक है, चलिए थोड़ा सा चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं
universal law of gravitation. Okay? So every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the centers of two objects. Okay, चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से नोट चलते हैं. ये पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, इसके बाद फिर आगे समझेंगे. तो ये क्या बोल रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर एवरी अदर ऑब्जेक्ट. कोई सा भी ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है. समझ में आ रहा है? यस सर. तो हम ही लोग जो है ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग थोड़ा सा दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन हम लोग भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करें. समझ में आया? Yes, sir. यस सर. ठीक है, आपको मून भी अट्रैक्ट कर रहा है, मून आप मून को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको सन भी अट्रैक्ट कर रहा है, सन आप सन को अट्रैक्ट कर रहे हो. समझ में आ रहा है? हर कोई आदमी, हर कोई ऑब्जेक्ट जिसका भी कुछ भी मास है उसमें वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाता है. समझ में आया? यस सर. Yes, sir. क्लियर है? तो आपका Yes, sir. बेसिक कंडीशन क्या होना चाहिए कि आपको मास होना चाहिए. ठीक है, मास है तो अट्रैक्टिव पावर है. समझ में आया? यस और नो? यस सर. ठीक है, तो every object in this universe attracts every other object with a force which is proportional to the, ठीक है, with a force. ठीक है, every object in this universe attracts every other object with a force. क्लियर है? यहाँ तक पहला लाइन क्लियर है? यस सर. ठीक है, अभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो हम लोग है ना, अपने हम लोग बताइए, कुछ एग्जांपल दीजिए. एक पर्टिकुलर चीज होता है जो आपस में चिपक जाता है. दो को साथ में रखिएगा तो चिपक जाएगा, नहीं तो लोहा के साथ चिपक जाता है. बताइए क्या है? सर मैग्नेट. The magnet. ठीक है, बाकी लोग? ठीक है, मैग्नेट है. ठीक है, ठीक है, नहीं क्लियर है? तो दोनों Yes, sir. मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. करेक्ट? यस सर. तो वैसे ही क्या होता है कि एवरी यूनिवर्स इन द ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स. क्लियर है? यस और नो? यस सर. Yes, sir. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है. क्या है डिफरेंस? चलो, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करें. ठीक है, ताकि और अच्छे से समझ में आए हम लोगों को. तो सबसे पहला चीज है डिफरेंस में कि मैग्नेटिक जो है दो तरह से काम करता है, अट्रैक्ट भी करता है और रिपल्सिव भी होता है. समझ में आया? यस सर. ग्रेविटेशन जो है क्या करता है? केवल अट्रैक्ट करता है, नो रिपल्सन. क्लियर है? Yes, sir. यस सर. दूसरा चीज क्या है मैग्नेट का? नेचर ऑफ द फोर्स. नेचर, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. ठीक है, ये इसीलिए ये डिपेंड करता है उसके ऑब्जेक्ट के नेचर पे. ठीक है, जैसे कि आयरन होना चाहिए या फिर मैग्नेट होना चाहिए. समझ में आया ना? यस सर. तो इसी हिसाब से होना चाहिए. ठीक है, लेकिन ये जो है दिस इज यूनिवर्सल. समझ में आ रहा है? यस मतलब कि सर. सब पर लगता है. क्लियर है? यस सर. Yes, sir. ओके. तीसरा चीज है कि ये मैग्नेटिक फोर्स है ना ज्यादा स्ट्रांग रहता है. ठीक है, आप जो है 1 किलो का मैग्नेट दो और फिर 1 किलो का मैग्नेट रख दो तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे. लेकिन 1 किलो का ऑब्जेक्ट और दूसरे 2 किलो का ऑब्जेक्ट, 1 किलो का दो ऑब्जेक्ट लेकर के साथ में रख दो तो ग्रेविटेशन फोर्स कम होता है. समझ में आया? Yes, यस sir. सर. ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेविटेशन फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स?
लिख लिया तो बोल दीजिए। Yes, sir. लिखिए। ओके लो। Yes, sir. Yes, sir. तो ओके ठीक है, ये हम लोग पहला चीज पढ़े थे। द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ, है ना, कि अट्रैक्ट होगा, ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा देखो, इससे भी पहला हो गया एवरी ऑब्जेक्ट, ये हर ऑब्जेक्ट पे लगेगा इस यूनिवर्स में, समझ में आया? ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। क्लियर है? Yes, sir. हेलो। Yes, sir. दूसरा प्रॉपर्टी हो गया कि ये अट्रैक्ट करेगा, केवल अट्रैक्ट, ओनली अट्रैक्टिव, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तीसरा चीज है कि किसको अट्रैक्ट करेगा, एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चुना हुआ नहीं, एवरी अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, समझ आया? ठीक है, जैसे मैग्नेट था, Yes, sir. वो केवल आयरन या दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये तीसरा क्या है प्रॉपर्टी, कि हर अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है ये सॉल्व? Yes, हेलो, sir. Yes, sir. ओके लो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप लोगों का तबीयत खराब है क्या? No, sir. प्रत्युष का तो ठीक है, आप लोगों का खराब है क्या? No, sir. खुशी दास, No, sir. एग्जाम बहुत खराब गया है क्या आप दोनों का? अंजलि दास, खुशी दास, No, sir. No, sir. एकदम सुस्त आप लोग हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। चलो, थर्ड हो गया, एवरी ऑब्जेक्ट को करेगा अट्रैक्ट, समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, और फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, विच इज प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये चौथा प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, ये Yes, sir. चौथा प्रॉपर्टी हो गया फोर्स, और ये 4a हो गया। ठीक है, 4a हो गया कि प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब कि प्रोपोर्शनल टू द एफ जो है प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये हो गया 4b, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर आ रहा है? f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और ये पांचवा प्रॉपर्टी है, फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. ये पांचवा। ठीक है, तो चलो पांचों प्रॉपर्टी को अच्छे से लिखो, टेबल बना के, मतलब कि नोट करके अच्छे से लिखो पांचों प्रॉपर्टी को। समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो लिखिए, पांचों प्रॉपर्टी को अच्छे से लिखिए नोटबुक में अच्छे से।
सर हो गया।
हेलो, Yes, sir. सॉरी मैं थोड़ा okay. So these are the 5 properties of gravitational force. Okay, F is equal to, okay, ठीक है, इस पे हम लगा देंगे. So F is proportional to m1 into m2 and F is inversely proportional to r square. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Good. Okay, so these are the 5 properties. So what are the 5 properties? That it is acting on every object in the universe. It is only attractive force. It acts on every other object. Okay, so suppose there are 1 trillion objects. Okay, 1 crore objects. Suppose 1 करोड़ ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स में, तो आप जो है कितने लोगों को फोर्स लगा रहे हो, कितने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, बोलो. हेलो. हाँ, नहीं सुने. ठीक है, 1 करोड़. ओके, तो आप बताइए कि मैं कितने लोगों पे फोर्स लगा रहा हूँ. Sir, sir, सब पे. नंबर. Sir, 1 crore. हाँ, Sir, 1 crore. नहीं, गलत. Sir, 1 crore minus 1. हाँ, 99 लाख 99,099 999 इतने लोगों पे आप फोर्स लगा रहे हो. समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. Yes. 3 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो 1 2 3, तो कितना फोर्स है, तो ये इधर है, ये इस पे लगा रहा है, ये है ना, 2 जो है 1 को खींच रहा है, 1 2 को खींच रहा है. क्लियर है? हेलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसमें देखो कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 6 फोर्सेस लग रहे हैं, है ना. 1 2 पे लगाया, 1 3 पे लगाया, 3 1 पे लगाया, 3 2 पे लगाया, और 2 3 पे लगाया, 2 1 पे लगाया. 6 फोर्सेस है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. हेलो. Yes, sir. And this is proportional to the product of their masses. So this is proportional to m1 into m2, and this is inversely proportional to the square of the distance between them. That is inversely proportional to r square. तो हम लोग पहले भी, है ना, हम लोगों ने एक ऐसा देखा है एक फोर्स को जो कि प्रोपोर्शनल था. वो क्या था, याद है? प्रोपोर्शनल टू m था, प्रोपोर्शनल टू v माइनस u था, प्रोपोर्शनल टू t था. याद है? Yes, sir. क्या था ये? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में. याद आ रहा है? तो हम लोगों ने क्या किया था, इसको के एम वी माइनस यू बाई टी ऐसा करके लिखा था. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और मैंने Yes, बोला था कि sir. एक्सपेरिमेंट करने पे क्या होता है, ये के का वैल्यू 1 पता चलता है. समझ में आया? ये सर लो. Yes, sir. Yes, sir. अभी इसमें क्या है, जब मैं एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे पता चला F इज इक्वल टू के m1 m2 बाई आर स्क्वायर. और ये k का वैल्यू क्या है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे, नीचे देखेंगे. ये k का वैल्यू इसमें 1 नहीं आता है. दिस इज नॉट इक्वल टू 1. इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है. समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक हो गया. चलिए Yes, sir. चलिए, जो भी नोट करना है कर लीजिए, उसके बाद फिर यस सर बोलिए, तो फिर आगे बढ़ो. ठीक है, वो फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, फोर्स हम लोग पढ़ लेंगे, तब फिर फोर्स पढ़ लेंगे ताकि मैं कुछ क्वेश्चन दे सकूं आपको.
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. खुशीदास, खुशीदास हो गया? Yes, sir. Okay. So ठीक है. The gravitational force between two of uniform is directed along the line joining their centers. ठीक है, ये क्लियर है? Directed along the line, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था. ओके, चलिए. अभी let two objects A and B of masses m1 and m2 lie at a distance d from each other as shown is figure 10.2. ऐसा है वो ये figure. Let T be the force of attraction between two objects be F. According to the universal law of gravitation, the force between two objects is directly proportional to the product of their masses. That is, okay, ये clear है? F is proportional to m into m, ये clear है? Yes, sir. Yes, And sir. F is proportional to 1 by d square, clear है? To the square of the distance between them, ठीक है? ये clear है? Yes, sir. कंबाइनिंग, दोनों को कंबाइन किया, इन दोनों को कंबाइन किया तो ये आ गया. क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. और ठीक है, और जब मैंने सब कुछ को कंबाइन किया तो ऐसा आ गया. समझ में आ गया? ये जो k है, पहले मैंने हम लोगों ने k किया था, ये g हो गया. ठीक है, Yes, sir. अभी g को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड दिस इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और इसका वैल्यू आपको रखना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है हम लोग देखते हैं. इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, इसका वैल्यू है ऐसा यूनिट ऑफ g can be obtained by substituting the units of force, distance and mass. ठीक है, और इसका वैल्यू आ जाता है इतना. ठीक है, g का वैल्यू क्या होगा? 6.673 इंटू 10 to the power minus 11 मैग्नीट्यूड. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और इसका यूनिट मैं कैसे लाऊंगा? तो इसका यूनिट के लिए बहुत सिंपल सा चीज़ है. देखो, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. ये न्यूटन में रहता है, ये केजी हो गया, ये केजी हो गया, ये हो गया मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन पर केजी स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, इसका मतलब हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो गया जी का यूनिट. समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? Yes, sir. चलो, यूनिट कैसे आते हैं लिख लो. यूनिट कैसे आते हैं लिख लो. ठीक है, कर लिया नोट डाउन? Yes, sir. Yes, sir. यस. Yes, sir. चलिए,
So we know that there exists a force of attraction between any two objects. Compute the value of. Okay. This law is applicable in the sense that it is applicable to all bodies, whether the bodies are big or small, whether they are celestial or terrestrial. मतलब कि इंटरप्लैनेटरी, प्लैनेट से बाहर, प्लैनेट के अंदर, सब चीज पे ये लॉ लगता है. समझ में आया? यूनिवर्सल लॉ है. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. चलिए. ओके. अभी यहाँ पर एक छोटू सा एग्जांपल दिया है. ठीक है. तो मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ मून है, डिस्टेंस दिया हुआ है, फोर्स कैलकुलेट करना है. फोर्स को कैसे कैलकुलेट करना है? सिंपल है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. जी का ये है वैल्यू. ओके. जी वैल्यू ये है, यूनिट के साथ बैठा दिया गया. ये मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ मून है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है. इतना ज़्यादा फोर्स लग रहा है. समझ में आया? Sir. Yes. ठीक है. Yes, sir. फोर्स क्लियर है? कैलकुलेट Yes, हो sir. गया? हो गया कैलकुलेट? क्लियर है? सब लोग? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. दूसरे दोस्त? Yes, sir. ठीक है. अब जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ. अगर हम लोग को ये फोर्स नहीं रहता, ठीक है, the universal law of gravitation successfully explains several phenomena which were believed to be unconnected. तो ये फोर्स जो है हम लोगों को बाइंड करता है. क्लियर है? अगर नहीं रहता तो हम लोग उड़ जाते हैं. समझ में आया? हवा में उड़ जाते हैं. Yes, sir. ठीक है. अब ये मून जो है, मून को भी अर्थ के अराउंड जो रोटेशन देता है, रेवोल्यूशन देता है, वो कौन सा है फोर्स? ग्रेविटेशन ही है. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन कौन कराता है? ग्रेविटेशन ही कराता है. ठीक है नहीं? सन जो है अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है ना. Yes, sir. ठीक है. हेलो. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. चलिए, ये वाला जो है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, अगले क्लास में पढ़ते हैं. ये फोर्स का नेचर क्लियर हो गया, फोर्स का प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया, फोर्स का इक्वेशन क्लियर हो गया, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ कांस्टेंट समझ लिए, उसका यूनिट समझ लिए. ठीक है. इसके ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन देता हूँ. ठीक है, आप लोग करके. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. ओके. टाटा बाय बाय. Thank you, sir. Thank you, sir.